Okay. So there is a limitation with RIP version 1. What was that RIP version 1 limitation? The maximum hope count, if we see that maximum hope count, I would say that this is the correct sizing of that. Okay. Hmm. Maximum hope count was 15 supported, and it was Mhm. supporting only classful subnet, Mhm. classful subnet, because when it exchange the routing table with neighbors, it does not include the subnet mask. So what if what if somebody having uh, a network like this, and they are using subnetting, they are using subnetting, then RIP version 1 was not supporting. Why? Because if you take a subnet, for example, 192.168.1.0/24, this is the default subnet, this is the default network. Then if we break this in four subnet, then what will be that? 192.168 1.0 slash 26. This is the one. 192 168 1 dot, not 1 dot, it will be True. 64. 64.0 slash 26 192 168 128.0 slash 26, and there was one more 192.168.192, I guess. Yes. 192, correct. And 26. There are four subnet it will be created, and one subnet will have 64 IP addresses. Now, one, I will say that A, B, C, D, four subnet. So I can use A here, B here, C here, D here, and something I can create some more subnets I can use here. Now this is the Yeah. subnetting, but you see that these are subnets are part of the one parent network, which is 1.0. Yes. If I configure Mhm. RIP version 1, then what will be the challenge? RIP version 1, we don't require to configure the network subnet mask, right? We only give Mhm. the network, what the network 192.168. Oh, how it is writing. Okay. Yes, the network Uh, ID. yes, we write this way. If I write the first one, so it will pick automatically 24. That means entire subnet. सो Yeah. इट इज लाइक यहाँ पर ये कंफ्यूजन में हो जाएगा कि यहाँ पर अगर मेरा 1.24 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 1.20 1.0 कनेक्टेड है, 1.0 1.0 1.0। तो ये जब भी राउटिंग के लिए आएगा, ये कंफ्यूज आएगा 1.0 मेरा इधर है या इधर है। इट विल गेट कंफ्यूज, और वो पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा, वो प्रॉपर राउटिंग हो नहीं पाएगी, कम्युनिकेशन हो Okay. पाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है रिप वर्जन 1 के साथ। तो चैलेंज इज ओवरकम फ्रॉम विद रिप वर्जन 2। RIP version 2. Okay. Now, what is the new area about the RIP version 2? Similar concept, similar characteristics, but it maximum support 30 hop count. Just Okay. double. Number one, it support 30 hop count. Now, second, it also it support classless routing. What is that classless routing? In classless routing, it uses subnet mask to exchange the routing table। अभी पहले क्या हो रहा था कि हम सिर्फ 10.0.0, सॉरी, हम सिर्फ 10.0.0.0 एक्सचेंज कर रहे थे, और वो अपना राउटर जो दूसरा है वो अपने आप समझ जाता था /8, राइट। बट अभी क्या होगा, अब जब भी राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी, वो स्लैश अगर 8 है तो 8, और अगर /32 30 है तो वो /30 ही समझेगा, करेक्ट। सो इससे क्या होगा, हमारी क्लासलेस राउटिंग मीन्स सबनेटिंग को भी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को सपोर्ट करता है। दिस इज अ गुड पॉइंट, because everywhere subnetting is used, that's why Mhm. हर जगह सबनेटिंग ही यूज हो रही है ना वैन नेटवर्क में। कहाँ पर Yes. प्रॉपर हम क्लासलेस वाला क्लासफुल यूज करते हैं? तो रिप वर्जन 1 इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट विल बी रिप वेरी सून। तो बट यस, रिप वर्जन 2 is effective compared to the RIP version 1.
तो ये यहाँ पर ऐसा आता है। अब यहाँ पर करना कैसे है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप राउटर को कॉन्फ़िगर करते हो, आपको कमांड देनी है राउटर स्पेस रिप एंटर। वंस आपने ये डाला, फिर आपको कमांड देना है नेटवर्क। आप जो भी नेटवर्क देते आए हैं, आप एज इट इज देंगे। देन आपको यहाँ पे सेट करना है वर्जन स्पेस 1 या फिर 2। ओके, तो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो हमें 1 डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जब 2 से 1 पे करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा वर्जन 2 एंटर, ऑटोमेटिकली उस पे वर्जन 2 इनेबल हो जाएगा। Okay. ओके, लेट मी मूव फॉर दिस, लेट मी शो यू Okay. कुछ कमांड्स। Quick आपको question बताओ, about it. सॉरी। Yes. मैं बोल रहा था क्विक क्वेश्चन की सबनेटिंग हमने डाला ही नहीं उसमें, वो ऑटोमेटिकली गोना स्टार्ट रीडिंग द सबनेटिंग फॉर द वर्जन 2 जस्ट दैट ही सेड। जस्ट टू अपडेट, देखिए यहाँ पर सबनेटिंग मैंने डाला नहीं, करेक्ट, ये यहाँ पे सबनेटिंग नहीं है। लेकिन अभी यस ये राउटर जब भी राउट एडवर्टीज करता है तो बगल वाले राउटर को क्या बोलता है, 14000। वो सबनेट मास्क नहीं देता। यस तो सबनेट मास्क नहीं देता तो ये यस ऑटोमेटिकली 8 कंसीडर कर लेता है। करेक्ट है। अगर यहाँ पर अभी सबनेटिंग हमने यूज करी नहीं है, ऑल दो फाइन, लेकिन अभी अगर मैं रिप वर्जन 1 यूज करता हूँ, 2 यूज करता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, ये जब भी 14 को एडवर्टीज करेगा तो ऐसे नहीं करेगा, 14000 ऐसे नहीं करेगा, 14000/8 करके करेगा। तो इसके पास यहाँ पे 14 के साथ /8 भी जा रहा है। दिस इज द ओनली ओके डिफरेंस बिटवीन रिप वर्जन 1 एंड 2। अगर आपको एग्जैक्ट कॉन्फ़िगर करना है तो फिर आपको सबनेटिंग करनी होगी। पहले एक नेटवर्क की सबनेटिंग करते हैं, जिसमें मुझे 1 2 3 4 और 5 5 नेटवर्क निकालने होंगे। यानी एक बड़े नेटवर्क को 8 बड़े पार्ट में तोड़ना होगा और पहले 5 नेटवर्क को उठा के मुझे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो आईपीस मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी पड़ जाएगी, तो वो मुझे लगता है कि सिंपल हम कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप बोलो तो सबनेटिंग के साथ चले जाएंगे। नहीं पहले ऐसे कर लेते थे, समझ लेते हैं उसको फिर हाँ, देखते हैं अगर समझ फिर लेते हैं, फिर नीडेड। आपको रिप वर्जन 2 समझ में आ जाएगा, तो फिर हम सबनेटिंग के साथ इसको कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ठीक है करेक्ट। तो अभी सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि जो पहले रिप, अभी जो करंट रिप वर्जन 1 के साथ जा रहा है सिर्फ 14002 14000 जा रहा है। अब जब मैं इसको रिप वर्जन 2 कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 14000 ना भेजकर 14000/8 भी भेजेगा। मीन सबनेट मास्क के साथ जाएगा। तो इससे अगर यहाँ पर अगर ओके सबनेटिंग भी करते हो तो इसको प्रॉपर सबनेट मास्क पहुंचेगा, वो अपने आप से डिसाइड नहीं करेगा क्लासफुल वाला। ओके गॉट ओके, दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये राउटर 1 है, सॉरी 3 4 5 है। अब मैं इनेबल करता हूँ और यहाँ पे मैंने कहा शो आईपी राउट शो शो नो नो, राउट नहीं करना है, आईपी राउट नहीं करना, शो प्रोटोकॉल। अगर मैं शो ओके प्रोटोकॉल करता हूँ, शो प्रोटोकॉल, आप जैसे शो प्रोटोकॉल करते हैं, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है इंफॉर्मेशन, इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग इज इनेबल, मींस एंड नाउ फास्ट ईथरनेट शो, no no no, show, I will say that show IP protocol, show IP protocol, now this is the correct command, show IP protocol। जैसे आपने ये कमांड चलाई वहां पे दिखाता है राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सी कॉन्फ़िगर है, रिप। करेक्ट। शो आईपी प्रोटोकॉल से पहला आपका लाइन आता है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप, सेंडिंग अपडेट इन एवरी 30 सेकेंड। और नेक्स्ट जो है आपका 0 सेकेंड में ड्यू है, मतलब वो अभी भेजने वाला है। आफ्टर इनवैलिड 180, इनवैलिड आफ्टर 180 सेकेंड्स, और होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड्स, फ्लश यस टाइमर इज 240 सेकेंड, एवरीथिंग इज मेंशन। और ये क्या कहता है मेनली, आप ये देखो, सेंड वर्जन 1 रिसीव एनी वर्जन, मतलब ये क्या कहता है कि सेंड वर्जन 1 रिसीव एनी वर्जन। इसका मतलब समझिए, ये कहता है कि ये मैं रिप वर्जन 1 का राउटर हूं और आप भी रिप वर्जन 1 के राउटर और आप भी, राइट। तो मैं रिप वर्जन 1 का अपडेट भेजता हूं, करेक्ट। और ये क्या कर सकता है, रिप वर्जन का अपडेट रिसीव कर सकता है। तो यहां पर इसके कहने का मतलब ये है
कि सेंड वर्जन 1। अब ऑफ कोर्स ये राउटर वर्जन 1 है, रिप वर्जन 1 है, तो ये वर्जन 1 का ही अपडेट भेजेगा। लेकिन रिसीव एनी वर्जन, कि अगर यहाँ पर रिप वर्जन 2 हुआ तो वो इसको रिसीव कर लेगा, ये वाला राउटर राइट और फिफ्थ करा। मतलब ठीक है। मैं भेजूंगा तो वर्जन 1 की अपडेट, लेकिन रिसीव जो है, क्योंकि वर्जन 2 की अपडेट ये नहीं भेज सकता, क्योंकि वर्जन 2 की अपडेट में क्या होता है, सबनेट मास्क भी होता है। वर्जन 1 की अपडेट में सबनेट मास्क नहीं होता। ठीक है, तो कह रहा है मैं वर्जन 1 की अपडेट भेजूंगा, मतलब विदाउट सबनेट मास्क, लेकिन मैं रिसीव 1 और 2 दोनों से कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? यस। ओके, नाउ अभी देखता हूं ये दोनों सब पिंग कर रहे हैं, एक दो, करेक्ट, और ये दोनों पिंग कर रहे हैं। अभी मैं कहता हूं इसका यस। राउटर पे जाके रिप वर्जन 2 कर देता हूं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, और मैं रिप में चला गया। अब मैं कहता हूं वर्जन क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो वर्जन 1 एंड 2 मेरे पास दोनों ऑप्शन आते हैं, तो मैं यहां पर करता हूं करंटली वर्जन 2। ओके, एंटर। अब ये वर्जन 2 हो गया। अब जैसे ही वर्जन 2 किया, तो अब देखिए यहां से मैं इसको यहां पे पिंग करता हूं तो ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यस। होने देते हैं, ये डिलीट, और मैं 30 सेकेंड वेट करूंगा। कंट्रोल जेड, शो आईपी राउट। ये देखो कुछ टाइमर चल रहा है 33 सेकेंड का। ठीक है, 33 सेकेंड का टाइमर में अभी क्या होगा, 44 सेकेंड। यू सी दैट सम टाइमर्स आर गोइंग ऑन ना, वो किसके साथ चल रहे हैं, रिप के साथ चल रहे हैं। ये 44 सेकेंड हुआ। अब फिर से किया 53 सेकेंड, एक दो और ये तीन, क्योंकि तीन रिप है। अभी इसको चलने देते हैं। ओ ओ सॉरी, शो आईपी रूट 1 मिनट 2 सेकेंड। कब तक चलेगा? 180। नो, ये जाएगा टू 40। 240, करेक्ट, मीन्स 4 मिनट। So we have to wait for 4 minutes. After 4 minutes, you see that these routes are not available, क्योंकि वो होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद वो 60 सेकेंड वेट करेगा। क्यों स्टार्ट हो चुका है? क्योंकि ये जो है राउटर रिप 2 हो गया। अब रिप 2 क्या करेगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल। अब आप देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल करते ही यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल तो रिप है ही, करेक्ट। अब यस। इसमें क्या होगा, किधर है, करेक्ट, डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल सेंड वर्जन 2 रिसीव वर्जन 2। ये कहता है मैं सिर्फ वर्जन 2 के अपडेट सेंड करूंगा और वर्जन 2 से ही अपडेट रिसीव करूंगा। ये देखो ये लिखा हुआ क्लियर, सेंड वर्जन 2, मैं सिर्फ वर्जन 2 को सेंड करूंगा और वर्जन 2 से ही वर्जन रिसीव 2। करूंगा। तो अब अगर ये वर्जन 1 है, ये अपडेट इसको भेजेगा, तो ये क्या रिसीव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 2 है। ये कहता है मैं सिर्फ 1 से रिसीव नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 से रिसीव करूंगा। जब 2 से रिसीव नहीं करेगा तो इसकी राउटिंग टेबल में जो पाथ है वो स्टार्ट हो जाएंगे। देखो 2 मिनट हो चुके हैं, 31 सेकेंड। ठीक है, तो 4 मिनट का है ना, टू लाइक 240, 240 कितना होता है, यस। हाँ 4 मिनट। 4 मिनट। तो 4 मिनट का वेट करना होगा ये अपने पाथ को फ्लश करने के लिए। अभी पिंग हो रहा था, अगर आप देखो, क्योंकि अभी इसके अंदर वो जो ट्रैफिक है अभी है, मतलब वो जो राउट है अभी वो बना हुआ है। अभी देखो सक्सेसफुल इसलिए जा रहा है, राइट, क्योंकि अभी वो इसकी इंफॉर्मेशन 13 और 12 की इंफॉर्मेशन इसके पास है। ये कब जाएगी? ये जाएगी जब इसका होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। वेयर इज दैट? नाउ पॉसिबली डाउन, कैन यू सी दैट? अब इसका 180 सेकेंड इसने वेट किया, 3 मिनट्स उसने वेट किया। अब ये होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट हो गया। मैंने बोला था ना होल्ड डाउन कितने देर तक अपना वेट करेगा, 180 सेकेंड तक। तो 180 सेकेंड इसने वेट किया। अब इसने इसको क्या, 180 सेकेंड तक इसको अपडेट नहीं है तो इसने क्या इसको डिक्लेयर कर दिया, डाउन। अब इसने डाउन डिक्लेयर कर दिया, अभी अभी रिमूव नहीं हुआ। अभी देखिए सक्सेसफुल दिखा रहा है, अभी भी सक्सेसफुल दिखा रहा है। अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा तो भी सक्सेसफुल दिखा रहा है।
क्योंकि उसकी राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री है। अब मैं वापस से इसको हटाता हूँ, 1 मिनट और वेट करना है, क्योंकि जब ये पॉसिबली डाउन हो जाता है तो 180 प्लस 60 सेकेंड स्टार्ट होता है आपका फ्लश टाइमर। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ये जो आर 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 के 3 राउट्स हैं जो पॉसिबली डाउन दिखा रहे हैं, पॉसिबली डाउन, क्योंकि इनको इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है इस राउटर 4 और राउटर 3 तो देता ही नहीं है, राउटर 4 देगा राउटर 5 को कि भैया ये रही मेरी राउटिंग टेबल। बट इसको 180 सेकंड तक राउटिंग टेबल नहीं मिली, तो उसने 13, 10 एंड 12 तीन रिप राउट को क्या किया, इन पॉसिबली डाउन डिक्लेयर कर दिया। अब 1 मिनट बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, अभी भी इसको पॉसिबली डाउन में दिखा रहा है, अभी फ्लश टाइमर में भी कंप्लीट ना हुआ हो, तो वेट करते हैं थोड़ा सा और कुछ ही सेकेंड्स, और यू विल सी दैट आर जो है ये तीनों राउट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे, वो फ्लश हो जाएंगे यहाँ से, तो जब इसका टाइमर कंप्लीट होगा। और अभी इसकी एंट्री राउटिंग टेबल में है, तो इसी कारण से ये पिंग भी करता है। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, फाइन, लेट मी ट्राई, okay, it should delete the entry, show IP route, अभी भी है, possibly down, let's see, That's very weird. it's taking time. As Take per too long. theory, it should be 60 seconds, and Yes. then it should delete. There's a packet trace sometimes can be. There's a Maybe. yeah packet trace because it was not pinging at first. We have to do it 5 times or something. So So let's see. it's automatically taking down. That is fine. It should delete it. Let's see. I will keep watching on it. I am not. I don't want to leave it. I'm curious to know when it will be deleted. So Yeah. show No, I IP rule. think the packet tracer issue is not the thing because it should be working. uh, Yeah, it's not even doing anything. It just stuck there. It's definitely more than 4 minutes for sure. right. It's more than 4 minutes, but ah, it is just deleted. You see that? It's deleted, yes. So this is possibly down, and it's not 60 days. It took more than that. So Mhm. to wipe out. But yes, possibly down, declare it down. It took 180 second approximately. That is okay. So I understand. But here it is taking much time. But yes, you see that it's deleted now. The reason is Yes. why? Because if I say that show IP route protocol, so show IP protocol will show that it is RIP version 2 and it's send version 2 and receive version 2. Mm. So in that case, uh, Yeah. I guess here if we see and go with the wording, Hmm. book says that hold down timer plus 60 second is equal to flush timer. Correct? It is everywhere mentioned in this scope PPT also. And here it is saying that hold down timer is 180 second and flushed after 250, 240. After 240. Yeah. So So it took 4 minutes to even flush it out. It took 240 second at least here, but I want to have again this practical on original iOS on GNS3. I will see that. What is that actually? Okay, fine. Coming to the here, now, what, here, send version 2 and version 2.
रिसीव वर्जन 2। तो दैट मीन्स अगर मुझे इसको राउटिंग टेबल एक्सचेंज करवानी तो मुझे इसको भी वर्जन 2 ही करना होगा, तभी ये वर्जन 2 की अपडेट्स ये ले सकता है, करेक्ट? तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, Yes. इसको करता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रेप, और यहाँ पर मैंने कहा वर्जन 2। जैसे ही वर्जन 2 किया, फाइन, और यहाँ पर भी जाता हूँ, मैं करता हूँ इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल कॉन्फ टी राउटर रेप एंड नेटवर्क, नॉट नेटवर्क, वर्जन Version 2. 2। तो जैसे ही वर्जन 2 किया, अब इसको इसकी राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो जानी चाहिए। मैं देखता हूँ शो आईपी राउट, सी, फिर से आ गया। अगर आप देखो तो ये राउटिंग फिर से यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई, और इसको मिल चुका है, क्यों? क्योंकि Receive in version करेक्ट, 2. वर्जन 2 कैन रिसीव एंड सेंड, तो डिफरेंट, बोथ आर हैविंग सेम। तो आपको बस इतना ही करना है, वर्जन 2 इधर है, वर्जन 2 उधर भी करना है, और वर्जन 2 कैन एक्सचेंज द Okay. राउटिंग टेबल। Yeah. That's not bad. Okay. सॉरी, Yeah. I said that's not bad. It's good too. Like if I thought it's going to be a different, totally different thing we need to configure no, for no, no. RIP version. It's a time saving event. Uh, So everything yeah. is same. Everything is same. Uh-huh. Like you have to go and configure, enable the RIP router RIP, and after the router RIP, just version 2 and network, and that's it. So यहाँ पर करा क्या हमने? कुछ नहीं किया। राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हमने सिर्फ कहा तुम रिप वर्जन 1 थे, अब 2 बन गए हो। दैट्स इट। Uh, ओके, yeah. अब मैं इसे Yes. कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूँ। अब कॉम्प्लिकेट कैसे करूंगा? मैं वापस आता हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं, इसको मैं वर्जन 1 पे रखूंगा। अब ये रहा वर्जन 1, ठीक है? Okay. अब वर्जन 1 होने के बाद मैंने कहा शो आईपी प्रोटोकॉल, ये कहता है सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव वर्जन 1। आप ये देखो, सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव वर्जन Receive 1। version. तो ये वर्जन 1 को सेंड करेगा और रिसीव भी वर्जन 1 करेगा, लेकिन ये क्या कहता है? सेकेंड राउटर कहता है शो आईपी प्रोटोकॉल, ये कहता है कि मैं सेंड वर्जन 2 करूंगा और रिसीव भी वर्जन 2 करूंगा, क्या ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी। अभी तो पिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका पाथ इनवैलिड होगा, शो आईपी राउट। तो अभी आप देखो, यहाँ पे आर आर फॉर दिस वन, ये टाइमर स्टार्ट हो गया, 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर मैं इसको फिर से करता हूँ तो 1 मिनट 9 सेकंड का हो चुका है। तो 180 Mhm. सेकंड कितना होता? 3 मिनट्स आई गेस। हाँ, थ्री Yes. मिनट्स टिल 3 मिनट्स इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड होल्ड डाउन टाइमर, देन उसके बाद फ्लश टाइमर, उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होगी। तो अगर मैंने ऐसा किया, देन उसके बाद क्या होगा? तो मैं 3 मिनट अगर वेट कर लेता हूं, तो ये कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा इनके साथ और इनके साथ, बट ये दोनों आपस में करते रहेंगे क्योंकि ये रिप वर्जन 2 के हैं, करेक्ट? ये दोनों Yes. रिप वर्जन 2 के हैं, ये आपस में करते रहेंगे। बट इसका कम्युनिकेशन राउटर 3 के नेटवर्क का 4 एंड 5 के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि राउटर 1 एंड राउटर 2 है, इसके पास इंफॉर्मेशन आएगी नहीं। उस केस में क्या कॉन्फ़िगर करें कि राउटर 1 जो है राउटर 2 के साथ भी कम्युनिकेट करे, और जबकि यहाँ पर रिप वर्जन 1 है, रिप वर्जन 2 है। ऐसा क्यों हो सकता है? इंटरनेट में और वैन नेटवर्क में किसी के पास रिप वर्जन 1 यूज हो रहा हो, रिप वर्जन 2 यूज हो रहा हो, और अगर Mhm. मेरे पैकेट को गूगल तक पहुंचने के लिए 2 राउटर से होकर निकलना है, पहले एयरटेल Mhm. के लिए, देन एयरटेल के बाद किसी और का राउटर, करेक्ट? तो हो सकता है यहाँ रिप Yes. यूज हो रहा हो और वहां पर रिप वर्जन 2 यूज हो रहा हो, तो यहाँ से वहां तक पैकेट पहुंचेगा कैसे? ये एक चैलेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं Yes. आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास रिप वर्जन 1 रहेगा, यहाँ पे रिप वर्जन 2 और यहाँ पर रिप वर्जन 2 रहेगा। मैं लिख देता हूँ, ये रहा रिप वर्जन 1, और ये रहेगा, यहाँ पे रिप वर्जन 2 है भी, और इस जगह पर कर देता हूँ रिप वर्जन 3, ओह नॉट 3, 2। सो 2 इज देयर। नाउ अभी 2 तो कम्युनिकेट करेंगे, आई नो, राउटर 4 एंड 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिप वर्जन 1 का मैं वेट कर रहा हूँ 3 मिनट का। मैं एक बार राउटर से हट जाए, तो यहाँ पर पॉसिबली डाउन आ गया क्या? यस, पॉसिबली डाउन रिप, पहला आर फॉर रिप, पॉसिबली डाउन, आर फॉर पॉसिबली डाउन, ओके। It's gonna take like at least 4 minutes for that. हाँ, Plus 240. करेक्ट करेक्ट, मे बी। सो Mhm. जैसे ये होगा,
तुरंत पिंग ब्लॉक हो ओके, जाएगा, मतलब पिंग कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद मैं 1 और 2 के साथ कम्युनिकेशन कैसे कराना है वो मैं आपको कुछ नहीं करना है, ओके, मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। अभी क्या कहता है, जब तक ये हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फ़िग शो आईपी प्रोटोकॉल, इसके हिसाब से कहता है सेंड वर्जन 1 एंड रिसीव वर्जन 1। अब मैं यहाँ पे सेट करूंगा सेंड वर्जन 1, ओके, एंड रिसीव वर्जन 2। इससे क्या होगा, ओके, ये वर्जन 1 तो सेंड करेगा ही करेगा, ओके, बट वर्जन 2 रिसीव भी करना शुरू कर देगा। हम एक कमांड चलाएंगे, इसको सेट करेंगे कि तुम वर्जन 2 को भी रिसीव करो, और यहां पर जाने के ठीक है, बाद बोलेंगे सेंड वर्जन 2 बट रिसीव वर्जन 1, ओके, ओके। तो जैसे ही मैंने कहा कि रिप वर्जन 1 को, ये अभी वर्जन 1 सेंड कर रहा है, वर्जन 1 रिसीव कर रहा है, तो वर्जन 1 सेंड करेगा, दैट इज फाइन। लेकिन ओके, वर्जन 2 इधर राउटर जो है 4 इसको भेजेगा, तो ये वर्जन 2 रिसीव नहीं करेगा, तो मुझे यहाँ सेट करना होगा रिसीव वर्जन 2। इज दैट क्लियर? यस, नाउ अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वर्जन 2 रिसीव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे, यस, तो वर्जन 2 रिसीव कर रहा है इसलिए यहाँ की राउटिंग टेबल यहाँ आ जा रही है। अब मैं बोलूंगा रिसीव वर्जन 1 ऑल्सो, तो यहाँ 1 का जो है वो जो सेंड कर रहा है ये 1, वो यहाँ पे रिसीव भी तो होना चाहिए, तो यहाँ बोलूंगा रिसीव वर्जन 1। तो मैं जरा करके दिखाता हूँ। पहले तो राउटिंग टेबल देखता हूँ, शो आईपी राउट, बस फ्यू मिनट्स मोर और फ्यू सेकंड्स मोर, देन चलिए, तो वो कर रहा है। एक और क्विक क्वेश्चन आपके लिए। हाँ। जो राउटर 3 है हम्म, ना, तो आप अगर उसमें वर्जन 1 को रिसीव कराओगे जिसमें हम 2 रन कर रहे हैं, ओके। तो हमें थर्ड में भी करना पड़ेगा सेम थिंग? नहीं नहीं नहीं, अब ये इसको 2, नहीं, इसको 1 दे कौन रहा है, अब आप बताओ। इसको 2 इसको दे रहा है। नहीं, अगर आप देखो राउटर 4 के पास कौन सा वर्जन इनेबल है, रिप वर्जन 2, करेक्ट। अगर ये अपनी राउटिंग टेबल इधर हम्म, एक्सचेंज करेगा 5 के साथ, तो ये तो सेंड वर्जन 2 हम्म, ही तो सेंड कर रहा है, यस, और इसके पास ऑलरेडी वर्जन 2 इनेबल्ड है, तो ये वर्जन 2 इस रिसीव भी कर सकता है, वर्जन 2 सेंड भी कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसके साथ। नहीं, नहीं, प्रॉब्लम इसके तब साथ आती नहीं। है इसके साथ जब ये वर्जन 1 होता, ओके, जब ये वर्जन 1 होता अभी, तो ये इधर क्या भेजता, वर्जन 1, यस, और ये वर्जन 2 अभी, के लिए रेडी है, यस, तो मुझे इसको बताना पड़ता तो अगर रिसीव हम, वर्जन 1। यस, अगर मैं 5 का एक जस्ट सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूँ, अगर हम्म 5 अगर किसी से कनेक्ट है, हम्म, व्हिच इज 1 or somewhere, so this is also needs to be enabled in the 5.1 as well, that's correct? करेक्ट, और अगर तो 5 के 5, साथ कोई router कनेक्ट है जो R1 है, RIP1, then we have to configure a version in here also, right? करेक्ट, रिसीव वर्जन 1, करेक्ट, वी हैव, Just that's what that's the question. नहीं दैट्स Okay. करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर ये वर्जन 1 होता, करेक्ट, ये Mm-hmm. वर्जन 1 होता, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इस तरह से ना समझा के मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊं, यहाँ पर आया Mm-hmm. और इस जगह पे मैंने पेस्ट किया और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अब इसके Mm-hmm. हिसाब से क्या है, आप समझते हैं, इसके हिसाब से ये है कि आप बोल रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे वर्जन 1 रखता, करेक्ट, Yep. और मेरे पास यहाँ पे वर्जन 2 है और यहाँ पे वर्जन 2 है, राइट, तो मुझे यहाँ पर ये वर्जन 2 को सेंड करता है और 2 को रिसीव करता है, करेक्ट, अभी बाय डिफॉल्ट। तो हमें यहाँ पे Mm-hmm. बोलना पड़ेगा 1 को भी रिसीव करो, Yes. और सिमिलरली ये 2 को सेंड करता है, 2 को रिसीव करता है, तो मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा 1 को भी रिसीव करो, और Mm-hmm. ये 2 यहाँ के 2 जा रहे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ 1 को रिसीव Mm-hmm. करता है, 1 को सेंड करता है, यहाँ पे बोलना पड़ेगा 2 को रिसीव करो और इधर से भी 2 को रिसीव करो, दैट्स इट। हमें Yes. इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कैसे Okay. Yeah, इन्फॉर्म वही करते मैं। हैं वो मैं बताता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं देखता हूँ इसकी राउटिंग टेबल से ये आर चले गए, यस चले गए, आप देखो, Mm-hmm. करेक्ट। सो जब ये चले गए देन हमारे पास इसके लिए पिंग की संभावना नहीं होगी, फेल, ओके। अगेन लेट मी ट्राई, इट इज फेल्ड। और व्हाट अबाउट दिस वन, rip version 2 to rip version 2, yeah it is success, you see that it is success। so अभी मैं एक बार यहाँ से लास्ट में भी ले जाता हूँ, फेल्ड, एक बार और, हो सकता है एक बार फेल हो,
नहीं, दूसरी बार भी फेल ही होगा। तो अब मुझे इसको बताना है, चलो चलते हैं। अब मैं यहाँ पर गया, अब मैंने कहा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रेप। अब मैंने कहा आईपी, नहीं, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दैट, नेटवर्क पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं नहीं नहीं, एग्जिट in the configuration mode, IP rep, IP, nahi, this is also not correct command. Let me try to find it out. Not handy. Okay, it's in configuration mode. Let me go on the interface, I guess. What is this interface? FA0 by 0. Interface FA0 by 0 and IP question mark. What is that? What is the IP? Correct. So I will go and question mark. Okay. IP OSP of. Give me 1 second. Why? Mismatch with the command. Okay. 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 IP rep send version 2. Okay. IP rep, नहीं, ये तो नहीं चलेगा। ये चलेगा कहाँ? This is something interface configuration mode. So, okay. Here I guess it will not work. IP rep send. No, no, no. It's not working. Send version 2. No, it's not working. It says, let me go with the exit IP rep send. No, IP rep command is there. PQR. No, just park this. I will take this on GNS3. Okay. So once we have original router, simple command is there in the configuration mode. I just go with that IP rep send version 2. ओके, और आईपी रेप रिसीव वर्जन 2। तो यहाँ पे मुझे इस राउटर पे वर्जन 1 है, तो मुझे वर्जन 2 का कमांड चलाना पड़ेगा, आईपी रेप रिसीव वर्जन 2। ये कमांड चलेगी आपकी रिप सॉरी राउटर 3 पे, जहाँ पे रिप 1 है, ताकि ये वर्जन 2 को रिसीव कर सके। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और इस जगह पे डालेंगे सिंपल
कॉन्फिटी आईपी रिप रिसीव वर्जन 1 उल्टा। तो इससे क्या होगा, Okay. वर्जन 1 यहाँ रिसीव होगा, वर्जन 2 इधर रिसीव होगा, तो जस्ट इस तरह से इनकी राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी। तो बट मैं इसको होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पैकेट ट्रेस नॉट सपोर्टेड। Okay. ठीक ओके, है। तो मैं GNS3 में इसका लैब करके दिखाता हूँ, मैं कहीं नोट कर लेता हूँ इसको। GNS3 में जब नेक्स्ट OSPF के बाद यूज करूंगा तो फिर उसमें बताऊंगा। ठीक है, कोई आप नोट कर लीजिए कमांड, हियर इट इज, दिस इज द ओनली कमांड। भाई मेरे को ये दिख क्यों नहीं रही है मुझे, IP rip send वर्जन 2 एंड वर्जन 1 एंड रिसीव वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो जिस हिसाब से आपको जहां चलानी है आप चला नहीं। सकते हैं। Got it. ठीक है। Okay, now this is the one thing which we completed with partial lab, which is not supported here. Now RIP version 1 and RIP version 2 is okay. And I'm not sure authentication is also supported here. Let me see that. Authentication is also supported. So I have something here handy. Let's see that. Okay, keychain. Okay, now if I go for key tab chain, yeah, it is supported. Very good. Let's go with that. Now what is authentication, RIP authentication? तो अभी मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अभी इसको वर्जन 2 कर लेता हूँ एट द मोमेंट। ओके, राउटर RIP आई विल से दैट वर्जन 2। अब वर्जन 2 करते ही ये आपस में पिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं देखता हूँ ये पिंग स्टार्ट कर देने चाहिए। फेल्ड, या तो 30 सेकंड का वेट करते हैं, अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करें। क्या बात है, कंट्रोल जेड शो आईपी राउट, आ तो गया सारा कुछ। लेट्स ट्राई अगेन, नाउ सक्सेसफुल। तो ये 30 सेकंड का वेट कर रहा था राउटिंग टेबल एक्सचेंज करने का, जैसे एक्सचेंज हुआ अब ये सारा कुछ एक दूसरे से पिंग करने लगा। अब एक प्रॉब्लम और आता है, मैं नया टॉपिक और लास्ट टॉपिक में पिक करता हूँ। वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का कम्युनिकेशन मैं उसमें दिखा दूंगा GNS में। इसमें लास्ट टॉपिक है ऑथेंटिकेशन, रिप ऑथेंटिकेशन। रिप ऑथेंटिकेशन में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा डीपर, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भी अपना राउटर मेरे नेटवर्क में इंसर्ट करता है या कनेक्ट करता है, उससे क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर उठाया एक राउटर, ये रहा मेरा राउटर, और मैंने किसी तरह से केबल को कनेक्ट कर दिया, ये रही केबल और ये कनेक्टेड। बट यहाँ पे ऑल दो कोई इंटरफेस अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स फाइन, ये नहीं कनेक्ट होगा। तो जैसे ही कनेक्ट होगा आप, और मैंने यहाँ पे रिप वर्जन 2 इनेबल कर दिया, जैसे इनेबल करूंगा मेरी सारी राउटिंग टेबल यहाँ पर आ जाएगी। यस। तो इससे मेरे पूरे नेटवर्क की 14 11 किस इंटरफेस से, कौन से राउटर से, कब किधर कनेक्टेड है, एवरीथिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी reflected here in this router. And this is not my यस। router, this is not my router, this router is someone specially injected for to capture the entire topology of my environment so that they can control it. So how I can prevent that? Anybody, भाई डेटा सेंटर है, देयर इज अ डेटा सेंटर, राइट। अब डेटा सेंटर में कोई जा करके क्या कर लेगा हमें यहाँ से नहीं पता चलता, राइट। अगर किसी ने कंसोल लेकर भी बैठ गए तो हमें कुछ नहीं पता चलने वाला। हाँ, लेकिन प्रोसेस इतना इजी भी नहीं रहता। आपको विद डेटा सेंटर एक्सेस रिक्वेस्ट के साथ जाना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको पहले रिक्वेस्ट रेज करनी है, देन वो अप्रूव होगी, पर्पस ऑफ द विजिट, कितने टाइम पे विजिट होता है, जनरली एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है हर एक डेटा सेंटर का, थोड़ा थोड़ा सबका अलग हो सकता है। तो इस तरह से इसका एक स्टैंडर्ड फॉलो होता है। लेकिन समहाउ अगर किसी तरह से फिजिकल कनेक्टिविटी राउटर तक आ गई तो पूरी की पूरी राउटिंग टेबल मेरी कंप्रोमाइज हो सकती है। उस केस में मैं चाहता हूं कि मेरे ये जो राउटर 3 4 एंड 5 हैं, ये अपनी राउटिंग टेबल सिर्फ आपस में एक्सचेंज करें, इनके साथ एक्सचेंज ना करें। हाउ दिस इज पॉसिबल,
कि आपस में एक्सचेंज करें और इनके साथ एक्सचेंज ना करें, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन इनेबल Okay. मतलब एक की चेन बनाएंगे, की चेन और यूजर नेम पासवर्ड। उससे क्या होगा, जब तक और इन सब का यूजर नेम पासवर्ड और की चेन सेम होगा। Okay. यूजर नहीं होता, की चेन होता है। की चेन मतलब एक यूजर नेम ही समझ लीजिए, और Mhm. इसका एक पासवर्ड होगा। वो जब तक तीनों का सेम होगा, मैच करेगा, तो ही वो अपनी राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे। तो अगर इस बीच अगर मेरा कोई तीसरा राउटर या चौथा राउटर आता है, तो उसमें वो की चेन नहीं मिलेगी। और वो जब ऑथेंटिकेशन नहीं होगा इसके साथ, तो फिर सिंपल है, वो राउटिंग टेबल इसके साथ एक्सचेंज नहीं होगा, चाहे ये रिप वर्जन 2 ही क्यों ना हो और कनेक्टेड क्यों ना हो। Mhm. Got it. Right? So how to Yes. establish, to create the configure the keychain? This is the let me ping in the chat so that you will have, where is that? Control V. Now there is another command, and I will use this command to configure it. Mm. Okay, this is in chat. Now, first of all, what is the command? You have to type keychain in the configuration mode, and name of the chain means you have to create one chain. Chain is kind of username, you can say that. Using this chain, yes, it will be configured. Then key, you have to create a number of this key, and it should be unique, and similar in all RIP router. If any number is different with any router, it will not exchange the routing table. And third point is key string. This is the password. So if you have typed the Okay. key hyphen string and some string value, this is your password for your um, chain. So let me go with that. Okay. Let me go with that. First, this is the rip. Okay. And Mhm. configure terminal. I will say that key chain क्वेश्चन मार्क वर्ड, तो मैं डालता हूं माई Mhm. की, और यू से दैट रिप की, फुल कैपिटल लेटर। ओके, मैंने एक चेन बनाई, की चेन, और नेम दिया उसका रिप की। ओके, एंटर। ये हो गया रिप की। यहाँ पे अब आगे का एक कमांड होता है की क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, जीरो से लेकर के इतनी सारी वैल्यू आप दे सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैंने एक वैल्यू सेलेक्ट की 59। Mhm. ओके, एक वैल्यू सेलेक्ट की 59, Yes. एंटर। तो ये हो गया मेरी की चेन हो गई रिप की, और की हो गया 59। देन की स्ट्रिंग हो गई आपकी, यानी जो पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ देना है क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 80 करेक्टर का यूजर का पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, Mm. अब ये पासवर्ड मैं कुछ ऐसे दूंगा, सिस्को। अभी फिलहाल मैं ऐसे सिंपल सा देता हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंगली, हर एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट यूज Yes. करते हैं। तो सिस्को मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मैं रिपीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे की चेन बनाई जिसका नाम है रिप की। नाउ की Mhm. वैल्यू मैंने दी 59, इट इज जस्ट अ रैंडम की बिटवीन 0 टू दिस मच नंबर। ओके, नाउ Okay. की स्ट्रिंग इज अ पासवर्ड। तो की स्ट्रिंग मैंने एक कमांड चलाई और उसके बाद पासवर्ड सेट कर दिया सिस्को। ठीक है, अब ये हो गया मेरा की स्ट्रिंग, की चैन, और की स्ट्रिंग इज रेडी ऑन दिस मशीन। अब इसकी राउटिंग टेबल Okay. किसके साथ एक्सचेंज होगी? इसके साथ। Okay. Mhm. करेक्ट, इस राउटर के साथ। अब इस राउटर के साथ Yes. चेंज होगी तो कौन से इंटरफेस से जाएगी? एफ ए जीरो बाई जीरो। करेक्ट, इसकी Mhm. राउटिंग टेबल एफ ए जीरो बाई जीरो Yeah. जाएगी। तो मैं एफ ए जीरो बाई जीरो पे Yes. ये ऑथेंटिकेशन सेट करूंगा कि ये जो यहाँ पर है, मैं यहाँ पे इनेबल करूंगा एफ ए जीरो बाई जीरो पे। और जब भी राउटिंग टेबल यहाँ से जाएगी, तो वो की चेन के साथ जाएगी। पहले की चेन जाएगा, देन स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी 59 एंड द पासवर्ड। अगर वो यहाँ पे मैच करता Mhm. है इस इंटरफेस पे, एफ ए जीरो बाई जीरो राउटर 4 के मैच करता है, तो ही राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी। ये हर 30 सेकंड में रिपीट होता रहेगा। Understood. ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ इनेबल कर Mhm. दूं एफ ए जीरो बाई जीरो पे। कैसे इनेबल होगा? मैंने आपको सेकंड कमांड दी है, अगर आप देखो इंटरफेस, आप पहले इंटरफेस मोड पे जाइए। चलिए मैं चलता हूँ, Mhm. यहाँ से मैंने एग्जिट किया, एग्जिट किया। अब मैं जाता हूँ इंटरफेस एफ ए जीरो बाई जीरो पे। अब मैं इंटरफेस पे पहुंच गया। अब दूसरा कमांड चलाना है, रिप आईपी रिप ऑथेंटिकेशन की चेन, और जो आपने की चेन बनाई वो यहाँ अप्लाई कर दो। तो ठीक है। आईपी रिप
अब ये मत कहना यहाँ कमांड नहीं चलती। क्वेश्चन मार्क आईपी है, आईपी क्वेश्चन मार्क रिप, डोंट से रिप, कम ऑन, ओपी क्यू, नो इट्स नॉट देयर। So two labs for GNS3. Okay, this one ठीक is है, for, created but it cannot be fluent. let me mention That's that what it said. GNS3. One is for RIP version Version. 1, communication with RIP version 2, and second Mhm. is RIP authentication lab. So these are two for GNS3. मैं, ठीक है, let me highlight this one, control B. That's why ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में उतना ही कवर कर रहे हैं जितना इनका कंटेंट होता है। तो ठीक सो ये रहे मेरे दो सिंपल। तो मैं एटलीस्ट ये आपको कॉन्फ़िगर करा रहा था। हाँ, तो जैसे ही यहाँ पे बन ठीक है। जाएगी वैसे आपको यहाँ पे बनानी है, रिप वर्जन 2 पे भी। Mhm. और वैल्यू सेम की चेन, सेम की वैल्यू 59 एंड सेम स्ट्रिंग, सेम Mhm. पासवर्ड देना है आपको। उसके बाद आपको इस इंटरफेस पे जाना है, इसको अप्लाई करना है, और इस इंटरफेस पे जाना है, इसको अप्लाई करना है। अगर Mhm. क्वेश्चन अब मेरा ये आता है, अगर मैं वापस जाता हूँ अपने डायग्राम पे, अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैंने की चेन बनाई और यहाँ अप्लाई कर दिया इस इंटरफेस पे, और यहाँ पर Okay. बनाया और इस इंटरफेस पे अप्लाई कर दिया, तो क्या ये अपनी राउटिंग टेबल इसके साथ एक्सचेंज करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो द पोर्ट, वो इंटरफेस है वो दूसरे से कनेक्टेड है उसका। बिल्कुल। लेकिन अपनी जब राउटिंग टेबल ये एक्सचेंज कर रहा है तो वो इस इंटरफेस के थ्रू करेगा। यहाँ यस। पे कोई पासवर्ड लगा हुआ है? नहीं। नहीं। यहाँ पे कोई पासवर्ड लगा हुआ है? नहीं। नहीं। तो ये तो कर लेगा। ओके। अब आप, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड लगा Mhm. हुआ है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इनेबल किया ना मैंने, इंटरफेस पे जाके कर रहा हूँ, करूंगा मतलब। Mhm. तो अब ये यस। किया है तो ये देखेगा की चेन क्या है तुम्हारी, और तुम्हारी की वैल्यू क्या है, और तुम्हारा पासवर्ड क्या है। अगर तीनों मैच करेंगे तो ही राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेगा। तो अब मैंने वही चीज मैं बता रहा था, मैंने इसीलिए ये डिजाइन यूज किया अभी, कि एक राउटर पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इधर पे ऑथेंटिकेशन इनेबल हो और इधर पे ना हो। ये Mhm. इसके साथ बिना ऑथेंटिकेशन के करे क्योंकि ये भी बिना ऑथेंटिकेशन के कर रहा है, बट लेफ्ट साइड के साथ यस। ऑथेंटिकेशन के साथ करे क्योंकि ऑथेंटिकेशन के साथ है। क्योंकि की चेन बनाने के बाद आपको इंटरफेस पे जाके इनेबल करना होगा, अप्लाई करना होगा, और कमांड आपकी ये ओके। रही। कहाँ है कमांड? ज्यादातर हम सारे इंटरफेसेस पे ऑन रखते हैं वो ऑथेंटिकेशन की, बिकॉज कोई इंटरफेस नहीं तो उसको डाउन रखना पड़ता है इफ इट्स नॉट नहीं, कनेक्टेड एनी आइडियली तो राउट। सारे पे करना है, हम जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि इन केस आप ऐसा चाहो तो कर सकते हो। कंसेप्ट शुड ओके। बी क्लियर कि हमें जो क्या करना है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन। How it work, ठीक that है, I गॉट इट। can only explain that part और Cisco can explain that only part, कि भैया this is the concept। अगर आपके इस इंटरफेस के बीच में और इस इंटरफेस के बीच में राउटिंग टेबल एक्सचेंज हो रही है, राइट, तो इनके Mhm. बीच में आपको या तो ऑथेंटिकेशन ना रखो, और अगर रख रहे हो हम्म, तो सेम स्ट्रिंग तो दोनों। पासवर्ड और सेम की चेन नेम होना चाहिए। अब रही नहीं, बात इन वरना दोनों वो के नहीं बीच कर। की बातें, तो आपकी चॉइस। और हो सकता है कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिकेशन लेस रखूं, और हो सकता है कि मैं पूरा ऑथेंटिकेशन के साथ कराऊं। ओके। ठीक है। तो ठीक दिस इज समथिंग व्हाट रिप ऑथेंटिकेशन ओनली लैब पार्ट इज है। पेंडिंग फॉर दीज टू, आई विल कवर इन द जीएनएस पार्ट। सो ठीक है। दैट्स इट फॉर द रिप, ओके। my first dynamic routing protocol
RIP is completed with 2 partial pending labs. Any question you want to raise? Most welcome. Otherwise, None. I'll Yeah, I got change. it. It's Okay. pretty straightforward. Yes. So let me stop.